just we just, by ignorance, we just leave the account as such without taking exiting from the account in a proper way. So this creates a problem for us, problem for the public, problem for the offices, in the sense that this information, if it is available on the site, it can be used by some, antisocial elements. It leads to frauds, and it happens many times. It might have happened to us also, for many of us also. So in this context, of course, I think this is our second lecture in this series on Cyber Jagrukta Divas. And I thank Dr. Rajni Jain for identifying Mr. Umaid Meel for this lecture, who is a renowned cyber expert. And he is CISA certified ethical hacker and certified computer hacking and forensic investigator. He has 8+ years of experience in cyber security, VAPT, digital forensic and cyber crime investigation. And he has conducted more than 150 training programs on cyber security, cyber crime investigation, particularly for the law enforcement agencies, the police or the defense agencies, but Air Force, BSF, CISF, CAG, CDTI, and several of the ministries at the center and the state levels. And moreover, he has, published a number of articles on cyber security and cyber crime in many high impact journals, national as well as the international journals. Besides, he has also been contributing to the social media in terms of, say, interviews to the news channels and newspapers on the cyber crime. In addition, he has given hundreds of seminars for creating cyber crime awareness, in general public, in school and college students, and in the universities. He has also helped the investigating agencies in solving around 200 major cases related to cyber crime in the country. And you know that today's our speaker, Mr. Umaid Meel, he is expert on all these kind of things, and I think we will benefit from his lecture in our day-to-day life and also in the professional life. With this, I request Mr. Umaid Meel to deliver the lecture. Thank you so much, sir. Good morning, all, and thank you so much, sir, Director, sir, Principal, Scientist Ma'am, Rajni Jain ji, and 1 second. I hope my screen is visible to you all. Can anybody confirm? Yes, it is visible. Okay. Thank you so much. And thank you so much for the Premchand ji, who actually introduced me to the ICAR, and to the whole ICAR team, who actually given me an opportunity to speak on the very critical and the crucial topic for our country as well as for your organization, because this topic may be new for you guys or your organization, but it is very special for me as well, because I also belong to a farmer family. So ICAR जो काम करता है, जो चीजें उन्होंने कंट्री के लिए जो पॉलिसीज या फिर जो रिसर्च की है, वो एक्चुअली मैं ग्राउंड से फील कर सकता हूँ. So this seminar is very special for me as well. And I'll skip my introduction part because ऑलरेडी हमने काफी सारा टाइम और बहुत ही वंडरफुल इंट्रोडक्शन डायरेक्टर सर ने दे दिया है. सो आई स्किप दैट पार्ट, बट आई वुड लाइक टू like thank you ICAR team for happy tech farming, because nowadays we are using technology in our farming technology, or the farmers or the farming like agriculture, like what kind of new innovation are there in our country, how farmers can use it and take the benefit of the government policies and the other things. So somewhere it is required to adopt the technology in agriculture as well, but
how ICAR can protect their policies, their data of the I can say the consumers or the farmers, क्योंकि कहीं ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सिर्फ साइबर रिस्क हो सकती है ना। आप एनआईसी के डेटा सेंटर में आपका भी सर्वर है, लाइक योर वेबसाइट इज होस्टेड ऑन एनआईसी और समवेयर एनआईसी इज मॉनिटरिंग एंड डूइंग मैनेजमेंट ऑफ योर पोर्टल, योर डेटाबेस और अदर थिंग्स। सो कई बार आपकी वेबसाइट है वो इन लोगों के लिए, लाइक फॉर अटैकर्स इट कैन और इट मे बी द लॉन्च पैड, कि लेट सपोज कोई एनिमी कंट्रीज को एनआईसी के सर्वर में एंटर होना है, so they can use your website or your platform or your server to make it as a launch pad from where they'll come to the ICR website or the server, and then they can jump to the NIC like NIC website or any of the defense or any of the critical server or the website. So ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे अटैक हो सकते हैं हम उन पे भी बात करेंगे। इनिशियली इन द 5 to 10 minutes you may find it very difficult or very boring topic कि क्या कुछ हो रहा है, but later on you will realize like how important this topic is for our personal as well as the professional life, as director sir already told. So कुछ ना कुछ चीजें इसमें हमारी ही गलती होती है, like if I talk about any of the point कि हमने कहाँ पर गलती करी है या फिर क्या कुछ है. So today we'll discuss about the trending cyber crimes, like what are the basic modus operandi or the crimes which actually can affect our life or the organization. Then crime which are added in the COVID-19, like how COVID-19 habits or the changes in our life has added more crime modus operandi to the portfolio of the criminals. तो वो भी हमें discuss करना. Then we'll discuss about the bank fraud, common cyber attacks, delivery mechanism, like how attackers can target you as an individual or organization to enter into your organization as well as the your bank account or any of the social media accounts. And then we'll discuss about the security measures, like how you can protect your accounts by following few of the preventive measures and security controls. So I'll hardly take 50 minutes to 1 hour to complete it. Later on, we will take your queries. Meanwhile, if you have any question or query related to any of the point which you can see on the screen or during the session, you can put it on the chat. Later on, like after the session, we'll take all your queries or questions one by one. So let me first start with the question, like who is the responsible for cybercrime which is actually happening to us or our organization? Maybe government, service providers like the telco service provider Airtel, Jio or BSNL. Then weak law arrangement, like our law enforcement agencies or law is not too strong. Education, like lack of the awareness or the education in the society, or the loopholes in the system, or the lifestyle that we have adopted in last 5 to 10 years after the technology era, or like after 2010 or 12. सो जनरली ये एक ऑर्डर में है कि हमें पहले शुरू में लगता था इनिशियली लाइक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, कि गवर्नमेंट ने इंटरनेट ऐसे ही देना शुरू कर दिया. देन सर्विस प्रोवाइडर जिनमें जियो ने सबसे पहले फ्री इंटरनेट सर्विसेज दी, देन हमने उनको ब्लेम किया कि शायद इंटरनेट फ्री हो गया इसलिए क्राइम हो रहा है. देन लॉ एनफोर्समेंट की पुलिस काम नहीं करती इसलिए क्राइम हो रहा है. एजुकेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने नई सोसाइटी एजुकेशन पॉलिसी नहीं लगाई, या सिस्टम में कुछ वीकनेस है, और लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो गई. ऐसा कुछ भी नहीं है. For every of the crime which is happening to us or our any of our non, actually we are the responsible for that. The reason is nobody has invited you to create your account on social media. Nobody has invited you to upload any of your picture like family function, birthday, anniversary or any of your पर्सनल डिटेल्स ऑन द सोशल मीडिया, जो कि पब्लिकली हैं. और आजकल तो अभी लाइफस्टाइल में कितना चेंजेस हो गया, लाइक बच्चे का बर्थडे होता है, बेबी बॉर्न, डे 1 का फोटो, that is disclosing the date of birth of your child. Then second month birthday, anniversary, 6-month anniversary, 1-year anniversary and many more. जहां आप ये भी नहीं देखते कि आपके घर में पीछे वॉल पे क्या है. कई बार होता है कि जहां आपके मोमेंटो या फिर ऐसी चीजें रखी रहती हैं जो आपका डिस्प्ले होता है, आप गेस्ट रूम में ऐसी जगह से फोटोज क्लिक करते हो, बैकग्राउंड में आप क्या कुछ आपके फोटोज या ऐसी कोई चीजें पीछे रखी हैं वो कैप्चर होता है. जिस डेट को आप फोटो अपलोड करते हो, डेट इज डिस्क्लोजिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब है, एनिवर्सरी कब है एंड अदर थिंग्स. जब हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में अभी जाएंगे तो देखेंगे कि डिटेल्स सुनने में शायद लगता है कि क्या डेट ऑफ बर्थ से क्या होगा.
मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में कुछ अगर कोई फोटो रखा है, कोई मोमेंटो है या कोई सर्टिफिकेट है, उसका क्या रिलेवेंसी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है। बट ऑनेस्टली ये डिस्क्लोज करता है। आपने कोई भी ऐसी अपनी हॉबी है वो उधर अपलोड करी है सोशल मीडिया पे, या कहीं भी कोई अकाउंट क्रिएट कर लिया जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, या फिर आपके चिल्ड्रंस को स्कूल में ऑनलाइन अकाउंट की जरूरत थी, देन यू हैव क्रिएटेड। प्रोफाइल पब्लिक रखिए, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी पुलिस ऑफिसर ने या किसी आईएएस ऑफिसर ने आपको नहीं बोला, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बोला कि अपने अकाउंट्स ओपन रखो, इस पे ये डिटेल्स अपलोड करो। समवेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज इंसिडेंट्स जो हमारे साथ आज हो रहे हैं, और जो आज हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। वैसे मैं आई एम सिंगल, सो जो आप लोग अपने बच्चों के लिए करते हो, मे बी आप में से कुछ भी हो सकते हैं, तो वो डिटेल्स आज आपको लगता है कि आपने बच्चे का अकाउंट बनाया है या उसकी बर्थडे डिटेल्स अपलोड कर रहे हो, जब वो 20 या फिर 18 प्लस होगा, जब उसके अकाउंट्स क्रिएट होंगे, उस टाइम वो पुराने जो ट्रेल्स या फिर इंफॉर्मेशन आप अपलोड कर चुके हो, यू कैन नॉट रिमूव दोज इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली फ्रॉम द सोशल मीडिया अकाउंट्स। और वो बाद में उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लाइक पासवर्ड गेसिंग अटैक या बहुत अलग अलग चीजों में। नाउ ये हमने इसलिए डिस्कस किया कि आप में से कोई भी अगर ऐसा बता सकता है कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके बियॉन्ड आपके पासवर्ड है। मे बी यू कैन क्रिएट पासवर्ड बाय यूजिंग मल्टीपल पॉइंट्स लाइक द नेम, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी डेट ऑफ योर चाइल्ड, लाइक बर्थडे ऑफ योर चाइल्ड, वाइफ डेट ऑफ बर्थ और वाइफ एनिवर्सरी, लाइक मैरिज एनिवर्सरी, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, फोन नंबर, लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर व्हीकल नंबर, और योर पेट नेम एज वेल। आजकल तो वो भी रखते हैं, रॉकी एट 123। सो कहीं ना कहीं यही डिटेल्स या फिर इन्हीं कॉम्बिनेशन को यूज करके हम लोग पासवर्ड क्रिएट करते हैं। सो दैट इज आवर सेकेंडरी फोल्ड, कि जो गेसेबल थिंग्स हैं हम लोग उन्हीं से पासवर्ड क्रिएट करते हैं। एंड हु कैन हैक योर अकाउंट इन दिस केस? योर फैमिली मेंबर, योर पार्टनर्स, और योर नोन और द रिलेटिव्स, जिनको ऑलमोस्ट सारी डिटेल पता है। गाड़ी घर के बाहर रहती है, पता है। घर का नंबर बाहर लिखा होता है, पता है। डेट ऑफ बर्थ पता है, आपने सोशल मीडिया पे डाल रखी है। मैरिज एनिवर्सरी क्या है वो भी पता है। आपके मेंबर्स का नेम क्या क्या है वो भी पता है। आपने डॉग का नाम क्या रख रखा है वो भी पता है। And by collaborating all those details or information, attacker can create a list of possible passwords. And then by using brute force attack, attacker can try to get login into your any of your online account, which include email, social media, office account like the gov account or any other accounts. So ये डिटेल्स जब भी आप अपलोड करो, मेक श्योर कि वो जिस लोगों को या जिन लोगों के ग्रुप को आपको दिखानी है सिर्फ उन तक ही विजिबल हो। Beyond that, it should not be accessible like for public or anyone in the society. It can impact not only your personal life, sometimes it may affect your professional life as well. The latest example, if you are aware about the ransomware attack on AIMS Delhi, वहाँ ransomware attack हुआ था, like attackers compromised almost 70% of the IT asset of the AIMS IT network. एंड फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ? बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में फोर्स क्या रहता है, कैसा कुछ है, यू नो बेटर देन मी, बिकॉज आप लोग काम करते हो। तो वहां किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है उसकी कि किसकी वजह से अटैक हुआ। एंड इनिशियली जो दो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थे जो नॉर्मली सिक्योरिटी की चीजें वहां देखते थे, फाइनली उन पर बात आ गई और उनको सस्पेंड कर दिया। सो ये चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक होगा, इंडिविजुअली आप पर भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आएगा। मे बी आपकी वो कोई लेजीनेस है, आपने कहीं पे कोई अपने चाहे ड्यूटी आपने कंप्लीटली फुलफिल नहीं करी आपने, या रेगुलर जो स्कैन या ऑडिट्स होने थे वो कंप्लीट नहीं करवाए। बट ये चीजें हमें मेक श्योर करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो एम्स में यही निकलेगा कि somebody has downloaded the like unverified attachment from the email account on the office laptop, and जब उसने अटैचमेंट ओपन किया उस टाइम रैंसमवेयर एग्जीक्यूट हुआ है। बिकॉज रैंसमवेयर का डिलीवरी मैकेनिज्म ही ईमेल है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। जो आपका जीओवी वाला ईमेल अकाउंट है उस पर कोई अटैचमेंट आएगा फ्रॉम अननोन सेंडर विच मे प्रिटेंड लाइक एज योर सीनियर और द डायरेक्टर सर, बट आपको वो मेल बहुत ध्यान से खोलनी है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपका भी नाम उस चीज के लिए आ सकता है, बिकॉज इनिशियल सोर्स और एंट्री पॉइंट आप ही हो उसको। Yep. So now let's move to the trending cyber crimes and modus operandi. Later on we'll also continue the organization part की ICAR पर किस तरह के attacks या फिर क्या कुछ possible attacks हो सकते हैं, how you can take preventive measures or put security controls, that we'll also discuss. But initially हम लोग personal part को लेते हैं कि आपकी personal life में कैसे attacks और किस तरह के crime हो सकते हैं
and how you can take help from the law enforcement or can mitigate those attacks or the alerts. So first is the social media. Maybe anybody can create your fake account. आपके अगर weak passwords हैं उसमें like phone number and other things, then anybody can hack your account. And by using those account, वो आपके जितने friend list में है, ये उल्टा भी हो सकता है, किसी दूसरे का account हैक किया, देन आप अगर उनके फ्रेंड लिस्ट में हो तो इमरजेंसी के नाम पे आपसे पैसे मांगते हैं कि लाइक माय फादर इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, आई नीड 20K इन इमरजेंसी, आई रिटर्न बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो इन द इवनिंग और द लाइक ऑन ए पर्टिकुलर डेट. सो आप बिना जान पहचान, बिना क्रॉस चेक के कई बार ऐसे पेमेंट भेज देते हैं. सो बी अवेयर, जब भी कोई VoIP कॉल, वॉइस ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल, that means the call is originated or doing from the by using the internet, जिसमें आपका WhatsApp, मैसेंजर का कॉल, स्काइप, टीम्स और जूम के जो अभी हम कॉल कर रहे हैं, इस तरह के सारे कॉल्स हैं जिसमें टेलीकॉम का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, सिर्फ डेटा कनेक्टिविटी होती है, कोई मोबाइल नंबर नहीं होता उसमें. ऐसे कॉल में अगर आपसे कोई भी फाइनेंशियल डिटेल मांगता है या कोई किसी चीज के लिए बोलता है, देन नेवर शेयर दोज डिटेल्स. यू शुड वेरीफाई और क्रॉस वेरीफाई द पर्सन हु इज एक्चुअली कॉलिंग यू, कि वो कौन है. उसको आप नॉर्मल टेलीकॉम कॉल करके या साधारण कॉल करके चेक करो. देन यू शुड मूव फॉर द पेमेंट पार्ट. देन ई शॉपिंग, आजकल हर चीज ऑनलाइन होता है, घर से कुछ आप मार्केट नहीं जाते हैं, मे बी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया. सो मेक श्योर जिस वेबसाइट से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो नोन हो, और थोड़े से डिस्काउंट या फिर बाई वन गेट वन के लालच में आप किसी अननोन वेबसाइट या फिर जो ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे जो लिंक आते हैं उन पर जाकर ऐसे प्रोडक्ट परचेज ना करें. द बेस्ट एग्जांपल इज द क्लब फैक्ट्री. क्लब फैक्ट्री एक मोबाइल ऐप है जो प्रोडक्ट बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ऑफर करता है. वहां से प्रोडक्ट परचेज करने के बाद आप अगर देखोगे तो ना तो आपको कोई कस्टमर केयर नंबर मिलेगा, ना उसकी कोई वेबसाइट है. सो व्हाट यू विल डू, अगर एक बार फ्रॉड हो गया, you will search it on Google कि online complaint, online police station, online EFIR for cyber crime, ऐसे करके सर्च करोगे, और it will be the second layer of fraud, क्योंकि यहाँ पर अटैकर्स और हैकर ने पहले से एक लेयर बना रखी है कि पहले फ्रॉड होगा फिर गूगल पे वो सर्च करेगा, बिकॉज हम इतने लेजी हो चुके हैं कि कंप्लेन के लिए भी पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे. इन दैट केस व्हाट अटैकर विल गेट बेनिफिट कि उसने एक फेक वेबसाइट बना रखी है जो ऊपर ही आएगी, onlinecomplaint.com या .io कुछ भी आएगा, आप क्लिक करोगे, वहां पर एक नंबर लिखा होगा, आप फोन करोगे कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, आई परचेज वन प्रोडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेबसाइट एंड मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला या मेरे साथ फ्रॉड हुआ है. तो वो बोलेंगे यस सर, विल टेक केयर ऑफ इट, आपका एक कंप्लेन नंबर है, आपको विद इन 1 आवर एक कॉल आएगा और आपको पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा. आपको ठीक 1 घंटे बाद कॉल आता भी है, पैसे की बात भी करता है, लेकिन वो पैसा आपके अकाउंट में आता नहीं, उल्टा आपके अकाउंट से निकलता है. वो बोलेगा कि सर मैं आप अपना यूपीआई वॉलेट खोलें, उसमें आप ये अमाउंट फिल करें, ऐसे ऐसे करके प्रोसेस करें और आपको उतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बट एक्चुअली वो डेबिट हो रहा है. सो डबल लेयर फ्रॉड भी होते हैं. सो एक बार इंसिडेंट होने के बाद पैनिक ना करें. आप प्रोसेस जो है, ओरिजिनल पुलिस स्टेशन जाना है, कंप्लेन देनी है, या फिर जहां आप एफआईआर कर रहे हो उस पोर्टल को वेरीफाई करना भी जरूरी है. Then related to the e-banking और financial frauds like lottery या QR कोड से कोई आपको बोलता है कि QR कोड स्कैन कर लो while you are purchasing the old products from the OLX or the other websites. So somebody can pretending as a army officer or the military officer, जिसमें वो बोलता है कि मुझे मेरा immediately transfer हो गया तो मुझे ये सारे products बेचने हैं, ऐसे करके किसी लालच में नहीं आना है. मोबाइल, जो लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, they are more vulnerable, they are on more risk. So be aware while you are using the Android version. आपके पास चाहे आपके पास OnePlus ही क्यों ना हो, एंड्रॉइड फोन है तो मेक श्योर उसकी कस्टडी किसी को भी ना मिले, सिर्फ आपके पास ही होना चाहिए. और जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो खुली किताब हूँ, मैं पासवर्ड नहीं यूज करता फोन पे, मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं जानते आपके फोन में क्या क्या है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. इवन यू आर यूजिंग और बीइंग ट्रांसपेरेंट विद योर फैमिली मेंबर्स और दी स्टाफ इन द ऑफिस, बट फिर भी आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही रखना है डिवाइस को, सो दैट कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल नहीं कर सके, कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल ना करे. और घर बैठे अगर आपको कोई कंपनी अगर ऐसा बोलती है कि हमारा ये रिमोट सपोर्ट ऐप है, लाइक द पेटीएम का आता है कि आपको केवाईसी करना है, यू कैन यूज आवर एप्लीकेशन टू इंस्टॉल एंड देन टेक द रिमोट असिस्टेंट फ्रॉम आवर एग्जीक्यूटिव टू डू द केवाईसी फ्रॉम होम ओनली. सो यू शुडंट रिलाई ऑन इट बिकॉज इट्स अ फेक कॉल. कोई भी कंपनी केवाईसी घर से इस तरीके से नहीं करता है कि उसको एक एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल करनी पड़े. देन फ्रॉम लैपटॉप एंड द डेस्कटॉप पर्सपेक्टिव, जो आप ऑफिस में यूज करते हो,
नेवर यूज द करेक्ट सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो पुराने टाइम में डॉरी में मिलता था उसमें कुछ भी मिल जाता था दहेज में, यहाँ भी यही हो रहा है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, दहेज में कुछ ना कुछ आएगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। लेट मी टेल यू वन स्टोरी। लाइक मैं जब इनिशियली पुलिस के साथ काम करने आया था अराउंड 2013-14 आफ्टर माय ग्रेजुएशन, सो मुझे लगा कि अच्छा बातचीत होती है, आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते थे हम लोग। देन एक बार किसी आईपीएस ऑफिसर ने घर पे इनवाइट किया कि लंच के लिए आओ। मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम किया है इसलिए बुला रहे होंगे। आई वाज सो हैप्पी एंड मैं चला गया उनके घर पे लंच के लिए। और जब लंच के लिए बैठ ही रहे थे उतने में उनका 7-8 साल का बेटा था, वो पीछे से आता है, अंकल अंकल मेरे लैपटॉप में विंडो डाल दोगे क्या? सो दैट वाज द रीजन कि फ्री में इंडिया में लंच में नहीं मिलता। अगर आपको फ्री में कुछ मिल रहा है दैट मीन्स उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा अनवांटेड सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट या फिर कोई ऐसा चीज आ रहा है जो या तो आज या फिर इन फ्यूचर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो नेवर यूज फ्रीवेयर टूल्स, क्रैक सॉफ्टवेयर्स और अदर थिंग्स। ऑलवेज यूज द लाइसेंस सॉफ्टवेयर एंड द वर्जन ऑफ योर फाइल्स। देन ईमेल, ईमेल हैकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज मे बी हो सकता है अभी तो मैंडेटरी कर दिया। 1-2 साल पहले कोविड से पहले ये था कि एनआईसी और जीओवी के ईमेल आईडी पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था। उस टाइम बहुत ज्यादा रिस्क था गवर्नमेंट ईमेल अकाउंट्स पे कि नॉर्मली पासवर्ड हमारे बहुत गेसेबल होते थे, लाइक ऑर्गेनाइजेशन नेम एट 123 या फिर 129 या जो ऑनर है उसका फोन नंबर ही पासवर्ड होता था। बट अभी ठीक है। फिर भी आपको सिक्योर या फिर थोड़ा अवेयर रहना है कि कोई अगर आपको मेल भेजता है देन ऑलवेज चेक द सेंडर नेम और द ईमेल एड्रेस। maybe you cannot check the email header, entire email header कि उसमें क्या क्या आ रहा है। अदरवाइज सबसे बेस्ट वे तो होता है ईमेल हेडर चेक करो। फिर भी आप ये चेक करें कि फिशिंग मेल ना हो, कुछ डमी ईमेल्स या फिर इस तरह का। देन व्हाइल यूजिंग इंस्टेंट चैट एप्लीकेशन यू शुड बी अवेयर अबाउट द डिटेल्स जो आपके डिवाइस से लीक हो सकते हैं या फिर ऐसा कुछ हो। लाइक कोई आपकी चैट पे स्पाई करने के लिए कोई ऐसा ऐप तो नहीं है, या फिर कोई डेटा रिकवरी का, जैसे डायरेक्टर सर ने अभी बताया, लाइक we have to create the information and disposal of the, like we have to address or have a proper policy for the information disposal. Yes, it is absolutely right. इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए आज बहुत सारे सोर्स हैं। आपके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है, एक इन्फॉर्मेशन बिल्ड कर रहा है। आप ऑफिस के लैपटॉप में लॉगिन करते हो, वो एक इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है। आप पूरे दिन क्या काम करते हो उसके लॉग्स क्रिएट होते हैं। आप कहीं पे मेट्रो में ट्रेवल करते हो, आपने आरएफआईडी कार्ड कहीं पे टैग किया, इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो रही है। लेकिन इन इन्फॉर्मेशन को कब तक रिटेन करना है और उसका कैसे डिस्पोजल होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हम लोग आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमें नहीं पता कि हमारे सिस्टम में क्या क्या पड़ा है, ऑफिस के कौन कौन से यूजर्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर है। और अगर वो कभी लीक होगी तो इट में क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स कि आपने कोई पुराना इंसिडेंट था या कोई ऐसी डिटेल थी, आप नहीं चाहते कि उसकी डिटेल्स बाहर आए, बट ऐसे केस में वो बाहर आ सकती है। सो मेक श्योर कि इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो गई, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो गया, आपको उसकी जरूरत नहीं है, देन यू शुड डू द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ दैट, कि वो इन्फॉर्मेशन वहां से डिलीट होनी चाहिए। देन ई लर्निंग, और ये तो सर्टिन का भी मैंडेटरी गाइडलाइंस है। आज मैं वो वाला टॉपिक नहीं ले रहा बिकॉज इट इज मोर टेक्निकल। लाइक सर्टिन गाइडलाइंस बोलती हैं कि विद इन 6 hours of any of the cyber incident you have to report all those details to the certain organization. तो बीइंग एन आईसीएआर और अदर ऑर्गेनाइजेशन, आपको अगर कोई ऐसा अटैक होता है तो जैसे ही वो आपके नॉलेज में आता है उसके विद इन 6 hours आपको रिपोर्ट करना ही होता है। अदरवाइज आप पर फाइन और पेनल्टी के भी बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। ई लर्निंग, ये आप खुद भी ध्यान रखें बिकॉज डे टू डे लाइफ में वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। तो आप कौन सी वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, कहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करें, एंड दैट इज फॉर योर चिल्ड्रंस एज वेल, कि वो कैसी कैसी डिटेल्स और कहाँ से अपना असाइनमेंट्स और वर्क कर रहे हैं। वो भी एज ए पेरेंट और केयर टेकर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए। देन किसी को ये लगता है लाइक आई एम अवेयर अबाउट दोज कंट्रोल सिक्योरिटी मेजर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स, देन साइबर अटैक किसी के साथ भी हो सकता है। सो थोड़ा सा और ज्यादा सेफ्टी की जरूरत है, क्योंकि हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री को चलाने के लिए 3 ही चीजें होती है, लेजिस्लेचर, उसके बाद आपका जुडिशरी और फाइनल एग्जीक्यूटिव्स। तो आप देखो वन बाय वन लेते हैं। लेजिस्लेचर में, लाइक इन लेजिस्लेचर आप देखो पंजाब की सीएम की वाइफ के साथ फ्रॉड हुआ था 28 लाख रुपीज का। लेजिस्लेचर पॉलिटिशियंस आ गए। देन आवर फॉर्मर चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा जी, जिनके साथ भी 1 लाख का फ्रॉड हुआ था ईमेल, किसी उनके फ्रेंड का जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनके अकाउंट के थ्रू उनको एक मेल किया और इमरजेंसी में 1 लाख रुपए मांगे थे, जो
हालांकि वो पकड़े गए थे। देन आईएएस ऑफिसर फ्रॉम राजस्थान, आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम दिल्ली जो कि जॉइंट कमिश्नर थे। सो किसी के साथ भी क्राइम हो सकता है अगर थोड़ी सी भी लापरवाही अगर रही आप डिजिटल वर्ल्ड या डिजिटल एरा में। Now let's quickly move to the COVID-related crime because we have very less time, and let's cover all the topics from the third floor only. Then कोविड के टाइम पे जो हमारा ऑफिस था वो घर था, सेकेंडरी हाउस वी कैन कॉल इट। लाइक आप सारा काम वहीं करते थे, कुछ परचेज करना होता तो भी आप आते हुए मार्केट से परचेज करके लेके आते थे। बट नाउ योर लैपटॉप और योर मोबाइल फोन इज द एंटायर हाउस और द ऑफिस, जिसमें सब कुछ लैपटॉप से ही हो रहा है, ऑफिस भी और आपकी ग्रोसरी और घर के जो भी काम होने सब कुछ वहीं से हो रहा है। नाउ द बैक साइड और द बैड साइड ऑफ द कोविड और द इंटरनेट इज, कोविड में आपको एक्सेस मिली मोबाइल फोन की फॉर अनलिमिटेड टाइम। You had access to the internet for unlimited data or the duration, then access to the personal room to attend the meeting, or for your children's like to attend the online classes, or professional to attend the office. So जहां पर आपको एक फ्रीडम मिलती है, एक बंद रूम है, फुल इंटरनेट है, मोबाइल डिवाइस है, आपकी हैबिट्स में क्या क्या चेंज हुआ? फर्स्ट, जब आपने ये सब चीजें स्टार्ट की, then you started for exploring more and more social media platforms and OTT platforms. OTT over the top platforms like जो Netflix आपका या फिर Star Plus जो ऐसे ऐप आप यूज करते हो, मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स आप सर्च करोगे, मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स, हर एक, if you can see on the left side, to install the multiple application you can check, like you will require more and more details to create account, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे उतने नंबर ऑफ अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। हर एक अकाउंट में किसी में फोन नंबर चाहिए, किसी में डेट ऑफ बर्थ, किसी में एज, नेम, या फिर आप कोई भी आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो उनको चाहिए। यू हैव टू फिल इट टू क्रिएट द ऑनलाइन अकाउंट लाइक द क्रेडिट डेबिट कार्ड एज वेल व्हाइल क्रिएटिंग द अकाउंट फॉर OTT प्ले। और वहां से एनोनिमिटी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, एनोनिमिटी बिल्ड होना, सॉरी, बिकॉज जब आपके पास एक ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट है जो लोग नहीं जानते, जैसे आपके पास मे बी नॉर्मली लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप टेलीग्राम यूज करते हो, टेलीग्राम में एक फीचर आता है आपने वो यूज करना स्टार्ट किया तो एनोनिमिटी बढ़ती गई, और वहां से आपके माइंड में ऐसी कुछ चीजें जो इंटरनेट के डार्क फेज की तरफ आपको लेकर जा सकती हैं, वो भी पॉइंट हो सकता है। सो दो डिटेल्स आप ऑनलाइन अकाउंट्स जो आपने लॉकडाउन में क्रिएट किए या फिर अब जो आप डिजिटल डिवाइसेस के साथ हैबिट में आके क्रिएट करते हो, वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में आपके अगेंस्ट बहुत कुछ आएगा। द रिसेंट एग्जांपल इज आवर हेल्थ केयर डेटा। अभी के लिए मेरा डेटा क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरा बैंक अकाउंट है, सैलरी आई, मैंने बिजनेस से पैसा कलेक्ट किया, वो मेरा सेफ होना चाहिए। बट इन नियर फ्यूचर, लाइक इन नेक्स्ट 2 or 5 year, healthcare data will more important as compared to your financial details, because अभी मुझे क्या डिजीज है, मुझे क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैंने कौन से डायग्नोसिस पहले करवाए हैं, क्या मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, क्या ट्रीटमेंट चल रहे हैं और कितने ड्यूरेशन से चल रहे हैं, नोबडी नोज अबाउट इट, बिकॉज जब तक वो मुझसे फिजिकली नहीं मिलेगा आई विल नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीबॉडी, और जब तक वो मुझसे पूछेगा नहीं। बट let's suppose if somebody hacked my hospital's website or server, or my personal account which is there on the government server as well. अभी गवर्नमेंट ने भी सर्विस शुरू करी है, like you can store your old diagnosis report or the medical reports to the government server. So अगर वो लीक होती है तो मेरे लिए सबसे बड़ा पर्सनल डिस्क्लोजर क्या होगा कि सबको पता चल गया मुझे कौन सी बीमारी है, मैं कितने साल से मेडिसिन ले रहा हूँ, और ये सब क्या है। सो लाइफ सेटनिंग और ये जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो आने वाले टाइम के चैलेंजेस है। तो आप किस हॉस्पिटल में जाते हो, वहां आपके डेटा कैसे ऑनलाइन स्टोर करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, and you should be aware about those details or the upcoming incidents as well. Now specifically for financial fraud, एटीएम कार्ड क्लोन हो सकता है, हम लोग क्विकली लेते हैं इसको, देन आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन यूपीआई हैकिंग, किसी ने आपका यूपीआई की वेरिफिकेशन कोड सेंड करवा के आपसे यूपीआई हैक कर लिया, या फिर कोई लॉटरी स्कैम या इस तरह के लिंक भेज के आपसे क्लिक करवा लिया फॉर पेमेंट। सो हैकर जब भी आपका कार्ड क्लोन करता है या फिर उस क्लोन्ड एटीएम कार्ड से अगर पैसा निकलता है, देन सबसे बेसिक चीज आप यहाँ से ये समझो कि फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में आपको पता होना चाहिए कि किस केस में बैंक की गलती है या बैंकिंग सिस्टम की एरर है, और किस केस में यूजर यानी मेरी खुद की गलती है।
बिकॉज जिस केस में बैंक की गलती होगी वहां पर पूरा पैसा, जितनी इंश्योरेंस आपके अकाउंट की है उतना बैंक आपको देगा. जनरली बैंक ऑफिसर्स और द बैंक एग्जीक्यूटिव्स वो आपको नहीं बताते लाइक आपके इंश्योरेंस क्या है, बट स्टिल यू शुड कीप इट माइंड कि मेरे अकाउंट की इंश्योरेंस है. एंड अगर आप किसी एटीएम मशीन गए, आपका एटीएम कार्ड क्लोन हुआ, ओरिजिनल एटीएम कार्ड आपके पास अभी भी है, ऐसे में अगर आपके अकाउंट से 20,000 या 50,000 रुपए निकलते हैं, then there is an option or a special arrangement from RBI named as banking lokpal. And under banking lokpal you can register a complaint at your concerned or the home branch कि आपके अकाउंट से इतना पैसा निकला है और उस ड्यूरेशन में आपके पास वो एटीएम कार्ड आपकी कस्टडी में ही था. सो एटीएम बैंक है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि सीसीटीवी फुटेज में जो कार्ड है और आपकी जो प्रेजेंस है, जो आपकी लोकेशन है, उसमें डिफरेंस है कि नहीं है. और अगर ये प्रूव हो जाता है देन इन दिस केस बैंक विल रिफंड यू ऑल द मनी जो आपको फ्रॉड में निकली है. बिकॉज चाहे क्रिमिनल पकड़ा जाए नहीं पकड़ा जाए, ये बैंक का अरेंजमेंट है कि वो आपको ऐसा पैसा अपने कंज्यूमर्स को रिफंड करेगा. तो लेकिन इसकी एक लिमिट है, लाइक इट शुड बी रिपोर्टेड विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ द इंसिडेंट, जिसमें आपका वीकेंड्स और नेशनल हॉलीडे काउंट नहीं होते हैं जो बैंकिंग हॉलीडेज हैं. उसमें आपको कंप्लेन देनी होती है, उसमें आपको मिलेगा डिस्प्यूट फॉर्म. देन नेवर शेयर योर ओटीपी, सीवीवी पिन एंड पासवर्ड विद एनीवन ओवर द कॉल और फोन. यूपीआई अकाउंट हैक होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप कुछ ना कुछ डिटेल शेयर करते हो, मे बी किसी लालच में या किसी इमरजेंसी केस में. सो मेक श्योर कि ऐसी डिटेल कभी भी बैंक आपसे ऑनलाइन या फोन पर या ईमेल के थ्रू नहीं मांगता, तो वो डिटेल नहीं शेयर करनी है. और अगर कुछ आपको कहीं शॉपिंग के लिए ऐसे कुछ कार्ड यूज करने, तो यू कैन यूज अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड द डेबिट कार्ड एज वेल और द क्रेडिट कार्ड, जिसमें एक लिमिट हो, सो दैट आप अपनी हार्ड अर्निंग जो मनी है वो एटलीस्ट कुछ लेवल तक ही आपका नुकसान हो, बाकी आप सेव कर सको. देन फॉर हैकिंग, anybody can hack email account, social media hacking and the device hacking as well. आजकल I'll not disclose the name of the ministry, but Indian government का ये एक मैटर था that we have investigated in last year, like last year maybe around July or August. What happened कि एक जो एसोसिएट डायरेक्टर थे उनके फोन में कुछ उनकी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स थी. एंड ये टाइम था जब उनमें से ग्रुप में से किसी का प्रमोशन होना था, मतलब 2-3 लोगों में से किसी 2 का होना था. एंड एक के डिवाइस में उनकी पर्सनल लाइफ की, चाहे वो उनके गर्लफ्रेंड का या कोई भी मैटर होगा, उनकी पर्सनल फोटोग्राफ्स और ऐसी चीजें थी. कुछ डिटेल्स उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की, जनरली हम लोग जो स्टोर करते हैं कि अगर कोई आपका कलीग ऑफिस में नहीं है या सीनियर नहीं है तो आपने फोटो क्लिक किया, व्हाट्सएप से सेंड कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट आपने व्हाट्सएप पे ले लिया और वो आपके पर्सनल फोन में है अभी भी. बट एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी यू कैन नॉट टेक दोज डिटेल्स ऑन योर पर्सनल डिवाइस और द नंबर, जैसा पर जनरली सब करते हैं. उस एसोसिएट डायरेक्टर ने यही किया, अपने सबऑर्डिनेट अपने जो कलीग था उनकी डिवाइस पर एक स्पाई ऐप डाला, कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया कि उनके डिवाइस में क्या क्या है, और वहां से वो सारी फोटोज रिमोटली कलेक्ट किए, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, और उन बेसिस पे उन्होंने अपने सीनियर को कंप्लेन करी. और जब कंप्लेन अनऑफिशियल थी, बाद में ये चीजें पता चली, तो मे बी इंटरनल जो पॉलिटिक्स और रीजन्स होते हैं उनके लिए वो बहुत हाईलाइट होगी वो कंप्लेन. एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को वो डिवाइस भी सीज करना पड़ा जिस फोन को लेकर वो कंप्लेन हुई थी. और डेटा रिकवरी में, क्योंकि इंसिडेंट के बाद उन्होंने डिलीट तो कर दिया था, लेकिन रिकवरी में वो सारी डिटेल्स आ गई. एंड उनके बाद वो प्रमोशन कैंसिल भी हुआ, उनकी जगह किसी दूसरे का प्रमोशन हुआ. तो समटाइम्स योर कलीग में क्रिएट योर मेनी प्रॉब्लम्स फॉर यू, सो यू शुड बी अवेयर. मैं वर्क कल्चर में कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं फैला रहा, बट डिवाइसेज के केस में किसी पर भी यकीन या भरोसा करने की जरूरत नहीं है. Your device should be yours. ऑफिस का लैपटॉप है that you can share if it is required or it is under the policy guidelines, then you can share. But personal device avoid करें, जहां तक काम हो आप किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें. Then for harassment and the sextortion, मे बी आपने सुना होगा कि आजकल एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है, एंड जैसे आप कॉल पिक करते हो तो दूसरी साइड में गर्ल न्यूडिटी या सेमी न्यूडिटी पोजीशन में होती है. एंड उसके बाद इमीडिएटली कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है जब तक आप रियलाइज करोगे कि ये क्या था. एंड लेटर ऑन शी एक्चुअली लाइक ब्लैकमेल यू कि आप मुझे इतना पैसा दो, अदरवाइज आई विल सर्कुलेट दिस फोटोग्राफ और स्क्रीनशॉट टू योर रिलेटिव्स और ऑनलाइन फ्रेंड्स.
तो क्योंकि हमारी सोसाइटी आजकल ऑफलाइन तो रही नहीं, मेरे बॉम्बे में फ्रेंड है, मेरे दुबई में फ्रेंड है, मेरे ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड है, उनको पता नहीं चलना चाहिए, चाहे सोसाइटी में जो नीचे वाले फ्लोर पे रहता है उसको भी पता चले, क्योंकि फिजिकली तो मिलते ही नहीं है ना। तो जो कल्चर चेंज हुआ है उस हिसाब से फ्रेंड्स को सर्कुलेट करना इजी भी है, क्योंकि उनकी रीचेबिलिटी बहुत आसान है, नाम सर्च करो, फेसबुक अकाउंट आया, मैसेज पे जाओ, क्लिक करो और सेंड कर दो। ऐसे लालच में लोग बहुत से पैसे देते भी हैं, और एक बार द मोमेंट यू स्टार्ट पेइंग द रेंसम, वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। पहले 10,000, 20K, 50K, 1 लाख और ऐसे करके। एक ओडी शोरूम के ऑनर से दिल्ली में लास्ट जो इंसिडेंट था, उसमें अराउंड 80 लाख, 1 करोड़ तक की रेंसम भी दी है लोगों ने। सो ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो आप ऑनेस्टली उस चीज को जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो, पुलिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। रीजन तो देखो सब जानते हैं, अगर मैं ड्रिंक नहीं करता और फिर भी अगर दारू के ठेके के पास जाके खड़ा होता हूँ, सो जनरली जो लोग मुझे देखते हैं वो यही सोचेंगे कि हाँ ये ड्रिंक करता होगा। आई कैन नॉट पिक कॉलर ऑफ एनीबॉडी कि यार नहीं मैंने नहीं पीती, हर एक को समझाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। द सेम थिंग इज दैट, वो स्क्रीनशॉट जब लोगों के पास जाएगा तो आप में फियर ऑब्वियसली होगा कि देखेगा वो तो यही सोचेगा कि ये मैंने ही किया। इट मे बी बिकॉज ऑफ द लव रिवेंज, कई बार नॉन जो होते हैं उनमें भी होता है। ऑफिस में सेक्सुअल फेवर्स के लिए जो डिटेल्स आप कई बार शेयर होती है, उन डिटेल्स से भी अवेयर है ना, लाइक यू शुडंट शेयर योर पर्सनल फोटोग्राफ टू एनी ऑफ योर सबऑर्डिनेट और द सीनियर। और आप ऐसा कुछ करते भी हैं, आपके चाहे वो कितनी पर्सनल बॉन्डिंग है, इवन आपका पार्टनर भी है, तो भी आप कभी शेयर ना करें। बिकॉज कब ऐसी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, या पार्टनर की डिवाइस अगर लॉस्ट हो गई, कहीं पे खो गई, उस केस में भी कोई वो चीजें रिकवर कर सकता है। तो ऐसे फोटोज वीडियोज कभी कैप्चर ना करें, अपने प्राइवेट मोमेंट्स को डिवाइस में रिकॉर्ड ना करें। देन नेवर विजिट एनी ऑफ द वल्गर और द पोर्नोग्राफिक वेबसाइट, बिकॉज उन वेबसाइट्स पे जब आप विजिट करते हो तो कुछ पॉपअप आते हैं आपको स्क्रीन पे, एंड वहां से कुछ चीजें ऑटो डाउनलोड होके आपके ब्राउजर को हैक करते हैं, एंड देन फ्रॉम ब्राउजर अटैकर कैन इंटर इनटू योर कंप्यूटर और द डिवाइस। तो वो चीजें भी आपको अवेयर करनी है, और इन चीजों से भी आपको बहुत सेफ्टी रखनी है, लाइक डिवाइसेस में। अदर लाइक डिफेंस पर्सनल की डिटेल दिखाकर आपको, जैसे OLX पे हम बात कर रहे थे, ऐसा कुछ बेचे तो आपको नहीं खरीदना है। फेक शॉपिंग वेबसाइट से अवेयर रहना है। जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उनसे बहुत सेफ रहना है, कि उसमें कितना कुछ आपको मिल रहा है या क्या कुछ नहीं है। क्रैक सॉफ्टवेयर कभी डाउनलोड नहीं करना है। एंड इफ पॉसिबल यूज इनकॉग्निटो मोड इन योर लैपटॉप, सो दैट जो आपकी सर्च हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड ना हो, और जब सर्च हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होगी तो आपको उससे रेलेवेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेंगे, जो कि बाद में कई बार आपको हाइपर लिंक और पॉपअप आते रहते हैं स्क्रीन पे, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। दिस इज अ वेरी न्यू केस, हालांकि न्यू नहीं है, काफी पुराना हो गया, बट मॉडस ऑपरेंडी इज स्टिल न्यू बिकॉज इतना सर्कुलेट नहीं हुआ है। बायोमेट्रिक मशीन, जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, उससे फ्रॉड कैसे होता है। आज तक सिर्फ ये था कि आदमी जिंदा है, उसके पास पैसे हैं, तो पैसे निकल सकते हैं। ये पहला मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है जिसमें मरने के बाद भी आदमी के पैसे सेफ नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि जिस आदमी की डेथ हो चुकी है, फैमिली उसका शौक मना रही है या फिर उसके दुख में है, पीछे से उनके आधार नंबर और उनकी जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट है जमीन के, उस पे उनका अंगूठा थंब लगा रहता है। उसका एक बटर पेपर से एक नकली डमी थंब तैयार किया, आधार नंबर उस गांव की पंचायत में रजिस्टर्ड, मतलब ऑब्वियसली हर चीज के लिए आप लोग देते हो, इवन होटल पे जाते हो तो वो आइडेंटिटी भी आप आधार कार्ड ही देते हो। तो सिर्फ थंब चाहिए आपका, और आधार नंबर चाहिए। उसके बाद किसी भी आधार इनेबल जो पेमेंट सिस्टम होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, वहां जाओ, आधार नंबर फिल करो, थंब लगाओ, आप वहां से पैसा कलेक्ट कर सकते हो, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। तो मरने के बाद भी लोगों के अकाउंट से पैसे सेफ नहीं है, किस लेवल का क्राइम है, यू कैन इमेजिन। सो बी सेफ। एंड आधार तो जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करो, आधार और पैन। लेट्स सपोज आप किसी ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं या फिर फैमिली ट्रिप पे भी जा रहे हैं, उस केस में भी होटल वालों को आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस एज आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं। जहां तक काम चले, आधार कभी भी नहीं देना चाहिए। एंड देयर इज ऑप्शन ऑन आधार वेबसाइट, लेट मी शो यू, आप वो भी यूज कर सकते हैं अगर आपको आधार यूज ही करना है तो। मास्क आधार कार्ड, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लाइक UDI वेबसाइट, जहाँ से आप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट की कुछ डिजिट ही विजिबल होंगे। उस अटैकर को या फिर जिसको भी आप आइडेंटिटी दे रहे हो उसको पूरा आधार नहीं विजिबल होगा। सो ये आप चीजें यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो आप आधार की वेबसाइट पर जाकर। मास्क आधार, जो कि नॉर्मल आधार की तरह ही काम करेगा, जहां जहां आपको जरूरत हो वहां उस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो।
one second. Yeah, let's back to this presentation. And now from personal to let's move to the professional parts, like the common cyber attacks which actually can impact your organization. So basic attacks हमारे पास हैं data theft या हैकिंग, जिसमें आपकी वेबसाइट हैक हो गई, सर्वर हैकिंग, मोबाइल या फिर ईमेल अकाउंट, बिकॉज कोई ना कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा जो आईटी एसेट्स की ऑनरशिप या फिर उनकी सेफ्टी को देखता होगा. सो वो डेटा और वो पॉइंट्स, वो पॉलिसीज, इट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग सो दैट इंटरनल थ्रेट्स भी और एक्सटर्नल थ्रेट्स भी, जो बाहर से अटैकर और कई बार अगर इंटरनल कोई डिटेल डिस्क्लोज करता है, सो इट कैन बी आइडेंटिफाई इजीली, जो कि आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए ऐसी. रैंसमवेयर अटैक ये सबसे कॉमन और पॉपुलर अटैक हो गया, जिसमें कुछ नहीं आता, ईमेल में एक डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फाइल आती है, वो फाइल खोलो, इतने में सारा काम हो जाता है. the malware will get execute in automatically in the background of that file. यूजर को रियलाइज भी नहीं होगा कि पीछे क्या हुआ है, and the entire system or the server will get encrypted and it will be a category of the system hijacking, जिसमें पहली बार ऐसी हाईजैकिंग होती है जिसमें जैसे प्लेन हाईजैक होता है तो ऑब्वियसली वो अटैकर्स के कंट्रोल में होता है, वो कहीं भी ले जा सकते हैं. यहाँ होता है कि डेटा आप ही की कस्टडी में, फिर भी उसको किसी और ने हाईजैक कर रखा है. जब तक आप रैंसम पे नहीं करोगे इन द बिटकॉइन और द क्रिप्टो करेंसी, they'll not give you the decryption key and you will not be able to utilize or use the details or the data no longer. So it should be in your knowledge, like कोई भी फाइल अगर आती है तो हमेशा देखें कि वो ईमेल किसने भेजा है, अटैचमेंट में डाउनलोड क्या करना है. इंडिया का पहला रैंसमवेयर हुआ था एक ऐसी जगह जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, हैदराबाद साइबर सेल, एंड इट वाज द फर्स्ट साइबर सेल इन इंडिया, और जो आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है. साइबर सेल का मतलब है जो केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसी सेल पे सबसे पहला रैंसमवेयर अटैक हुआ था, वानाक्राई, इन 2013. सो इन 2016 में भी 15 और 16. तो इस तरह के अटैक का हुआ क्या था कि वहां सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो एसपी के नाम से जो उनको ईमेल गया, वो ईमेल फेक ईमेल था, स्पूफ किया हुआ, कि मास्क ओरिजिनल अकाउंट कुछ और था, उस पर किसी ने मास्क किया, दिखने में एसपी साहब के ईमेल अकाउंट जैसा था. लोगों ने वो सर्कुलर डाउनलोड किया और पढ़ना स्टार्ट किया. जैसे जैसे डाउनलोड होते गए, वैसे वैसे उनके लैपटॉप सिस्टम सब एनक्रिप्ट होते चले गए. तो अगर आपको भी अपने सीनियर के नाम से कोई ऐसा मेल आता है जिसमें कुछ अर्जेंसी हो, लाइक यू शुड रीड दैट पर्टिकुलर करिकुलम इन अर्जेंट, आपको कोई सर्कुलर है वो अर्जेंटली साइन करके देना है, कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट आउट लेके देना है बॉस को, तो थोड़ा सा आप ये रखें कि उसको क्रॉस वेरीफाई करें फोन करके कि सर आपने ये डेट फाइल भेजी है, शुड आई टेक इट प्रिंट आउट और ओपन इट, और डू आई नीड टू साइन इट एंड सेंड इट बैक टू यू. वो सब डिटेल आप एटलीस्ट फोन पे क्रॉस चेक करें, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं. देन डॉस अटैक, कि कई बार होता है कि वेबसाइट की लिमिट या फिर आपके सर्वर की लिमिट है लाइक टू हैंडल द 1 लाख रिक्वेस्ट पर सेकंड, but what attacker or the enemies or the unsolicited elements can do, like they can put more request on a server which actually server cannot handle it. like 1 lakh से ऊपर अगर उसने 1,50,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड अडॉप्ट किया तो आपका सर्वर डाउन हो जाएगा, और जो जेन्युइन यूजर्स हैं वो उस वेबसाइट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे. उस ड्यूरेशन में आपको भी नहीं पता होता कि पीछे क्या हो रहा है. सो यूज डॉस प्रोटेक्शन. बहुत सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऐसे आ गए हैं जो डॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपको. यू कैन यूज दैट. यू कैन यूज ए हाईली कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क फायरवॉल एज वेल, जहां पर भी लिमिट होता है कि सिंगल आईपी से अगर इस तरह से मल्टीपल अटैक्स आते हैं तो यू कैन ब्लॉक इट. देन फिशिंग एंड परसिस्टेंट अटैक, ये बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने अभी जो इनिशियली बताया था कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ, आपके हैबिट्स, बैकग्राउंड में आपका सर्टिफिकेट है, कोई मोमेंटो है, ये एक्चुअली आपके हैबिट और इंटरेस्ट को शो करता है अटैकर को, कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते हो, आपको मोमेंटोज मिलते हैं, आप होटल्स में भी रुकते होंगे, कौन सी सिटी के मोमेंटोज या सर्टिफिकेट कौन सी कंपनी के या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादा है आपके पास, उस हिसाब से वो एक फिशिंग मेल ड्राफ्ट करता है, तैयार करता है, जिसको हम लोग स्पेयर फिशिंग बोलते हैं, कि पहले टारगेट को रीड करो, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो पेज बनाओ, सो दैट वो उसको खोलेगा भी, उस पर आप कोई क्लिक के लिए बोलोगे तो वो क्लिक करेगा भी. सो ऐसी डिटेल्स बहुत लंबे टाइम के बाद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और उसमें आपका गवर्नमेंट अकाउंट है उसके क्रेडेंशियल कोई ले सकता है. कई बार होता है जीओवी के मेल पे आपको मेल आती होगी लाइक कि आपका आईसीआर की वेबसाइट हैक हो गई है, ईमेल अकाउंट्स हैक हो गए, यू शुड चेंज योर ईमेल आईडी पासवर्ड इमीडिएटली बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक. ऐसी कोई भी मेल आती है तो उस लिंक पर जाकर पासवर्ड कभी चेंज मत करना. अगर आपको करना भी हो तो आप अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर वहां से पासवर्ड रीसेट या चेंज करें, उस लिंक को फॉलो ना करें. और ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी अडॉप्ट करें कि ऐसा कोई इमरजेंसी वाले मेल आती है तो कभी भी
डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं करना है, आप पहले उसको क्रॉस चेक करोगे, फिर ही उसके बाद या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से लॉगिन करो। ऐसे अटैक्स जो हमने डिस्कस किए उनको डिलीवरी के मैकेनिज्म क्या क्या है, मतलब हाउ अटैकर कैन रीच आउट टू यू। अटैकर कैन रीच आउट to you through email, through social media accounts, through WhatsApp, any link which you can get in the pop-up of your browser, then device to device. I also work with the law enforcement for the intelligence like higher defense authorities. So जहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक डिफेंस एक टारगेट का नाम मिलता है, then you have to collect multiple information about the target, जहाँ आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होना है। अब अगर आज मुझे डायरेक्टर सर के सिस्टम में एंटर होना है, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट टारगेट डायरेक्टर सर डायरेक्टली, बट व्हाट आई कैन डू, मैं जैसे प्रेमचंद जी घर पे रहते हैं, मैं उनकी डिवाइस को कभी लिया या फिर कोई कैसे भी करके गया, उनके पर्सनल फोन को कॉम्प्रोमाइज किया, अगले दिन वो ऑफिस जाएंगे, वो अपना फोन लेके जाएंगे एंड एज यूजुअल वो उस फोन को ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। तो मेरा जो भेजा हुआ मेलवेयर था वो उनके डिवाइस से वाईफाई तक गया, देन फ्रॉम वाईफाई आई कैन जम्प टू एनी ऑफ द सर्वर और सिस्टम इन द ऑफिस, और वहां से मैं डायरेक्टर सर के नेट सिस्टम पे आ सकता हूँ बिकॉज वो उसी नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो एक छोटी सी गलती जो शायद आपकी नहीं है, उसकी वजह से भी आप कॉम्प्रोमाइज हो सकते हो। सो ये सेफ्टी भी आपको रखनी है। देन फ्री डाउनलोड एंड द ओपन वाईफाई एज वेल, जो आप लोग कभी भी यूज करते हो, बिकॉज ओपन वाईफाई के केस में ज्यादा या फिर शोल्डर सर्फिंग जो होती है, कि आप अगर मेट्रो में बैठे हो या फिर पब्लिक प्लेस पे आप कुछ कर रहे हो, तो जनरली हम क्या करते हैं, मैं मम्मा के फोन में रिचार्ज कर देता हूँ, मैं इसको 10,000 रुपए भेज देता हूँ, ऐसे कुछ करते हैं। तो उस केस में जो पीछे खड़ा रहता है वो आप क्या पासवर्ड फिल कर रहे हो, क्या ओटीपी है, वो देख सकता है। सो ये भी आपको सेफ्टी रखनी है। देन how to develop the security practices or like the secure work culture in your organization. So आप चार चीजें फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, जीरो ट्रस्ट, लाइक अनसॉलिसिटेड जो ईमेल्स हैं वो डाउनलोड नहीं करनी है, अटैचमेंट्स ओपन नहीं करने हैं, क्रैक सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर सकते। ऐसी डिटेल्स, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स आप फॉलो कर सकते हो। Then for technical controls, you can put network firewall, web application firewall for your web applications. You can use antivirus, DLP, data loss preventions, like nobody can theft data from your organization to outside or any of the system from one to another system. So वो भी आप use कर सकते हो। SIM solution as well, आजकल सारी organization use करना start कर दिए हैं कि जो security events और incidents होते हैं उनको कैसे monitor करना है, so that आपको real time alerts मिले। You can use SIM solutions as well. It is obviously it is costly, बट एज पर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट यू शुड अडॉप्ट इट, जो कि नियर फ्यूचर सबको करना ही करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑफिस वर्सेस होम। कीप योर लाइक डिफरेंस बिटवीन योर पर्सनल गैजेट्स और द ऑफिशियल गैजेट्स। सेम वाईफाई से कभी कनेक्ट नहीं करना है दोनों को, अगर पॉसिबल है तो। अनप्रोटेक्टेड डिवाइस में डेटा ट्रेवल नहीं करना है। एंड नेवर ओपन योर पर्सनल ईमेल अकाउंट इन ऑफिस, क्योंकि एम्स में यही हुआ, जीमेल अकाउंट लॉगिन किया था, जीमेल के थ्रू अटैक आया वो। Then security awareness, there should be regular security awareness program in your organization. Mock drills if you can do, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडस ऑपरेंडी है जिनके मॉक ड्रिल्स भी आप कर सकते हो, जैसे फायर का होता है वैसे ही साइबर के भी कर सकते हो। एंड whenever you feel like there is an employee or the device which is very critical or suspicious, then you can put it on the monitoring, जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये कुछ केसेज है, हम लोग स्किप करते हैं इसको। लाइक बॉयज लॉकर रूम, आप सबको पता होगा, लड़कों ने ग्रुप बना के लड़कियों को डिफेम किया था फॉर टू प्रमोट द रेप कल्चर। ये बुल्ली बाई केस जो मुंबई का था, जहाँ पे ये लोग किसी कम्युनिटी के गर्ल्स को इस तरह से डिफेम करते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए था, ये पॉइंट दैट आई एडेड बिकॉज फैमिली में आप सिर्फ वर्किंग लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ना जाके चिल्ड्रंस को भी इस चीज का देखें कि वो क्या करते हैं डिजिटल डिवाइस और आपके गैजेट से। बिकॉज जहाँ विक्टिम और क्रिमिनल की बात करते हो, इफ यू हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट द आईटी और साइबर, then you may be a victim of cyber crime. But if you have a good knowledge about it, if your children has good knowledge about the IT or cyber, then they may become a criminal as well, because उनको पता है how to hack someone's device, someone's online account, how they can spy on someone or their habits, and how they can capture the personal photographs or videos of anyone by hacking the device or the camera of the phone. अगर आपको अवेयरनेस कम है, देन यू कैन शेयर योर डिटेल्स विद द यूपीआई डिटेल्स और एनी ऑफ द बैंक अकाउंट डिटेल्स विद द अटैकर। आप लिंक पे क्लिक करके कुछ इंस्टॉल कर सकते हो, आप कोई डिटेल शेयर कर दोगे, और यू माइट बी एडिक्ट ऑफ द डिजिटल डिवाइसेस, जो कि कोविड में सबके साथ हुआ है। इवन दूसरे को क्या बोलना, मेरा खुद का स्क्रीन टाइम फ्रॉम 3 आवर्स टू 6.5 आवर्स तक पहुंच गया है।
इतने तो फोन चालू रहता है, अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो भी अनलॉक करके हम लोग देखते रहते हैं कि कुछ तो आया होगा, किसी ने भेजा होगा। देन गूगल डैशबोर्ड। सो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं उनके लिए एक चीज है, मे बी आईफोन वालों को खुश होने की जरूरत नहीं है, बट यस इट इज गुड, रिलेटिवली दे आर सिक्योर। बट फिर भी डैशबोर्ड जितनी डिटेल उनके पास भी है। अगर आप लोगों ने सुना होगा गूगल डैशबोर्ड क्या है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बेसिक सा बताता हूँ। रजनी मैम, कैन आई टेक 10 more minutes, like is it possible? या थैंक Yes, you can take. यू, या थैंक यू। मे बी थोड़ा सा हो जाएगा लोड, बोरिंग हो जाएगा, बट ओके। सो गूगल डैशबोर्ड, लाइक आप अपने फोन में क्या एक्टिविटी करते हो। एक्टिविटी मीन्स आपके पास कितने मोबाइल फोन है, उनमें कितने सिम कार्ड हैं, कौन सा करियर यूज करते हो, आप कहाँ कहाँ जाते हो उस फोन से, क्या सर्च करते हो, कौन से वीडियोस देखते हो, कौन सी एप्लीकेशन ओपन करते हो, उन सब की डिटेल्स रहती है गूगल के पास। आपकी डिवाइस की हर एक एक्टिविटी जो आप फोन में करते हो वो डैशबोर्ड पे लॉगिन है, एंड यू कैन एक्सेस दैट डैशबोर्ड एज वेल। और इसमें ऐसे ऐसे काले चिट्ठे बाहर निकलते हैं, पूछो मत। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी मोमेंट। इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो जीमेल अकाउंट आपके फोन में लगा है वो अकाउंट आप अपने लैपटॉप में लॉगिन कर लो, और उसके बाद जैसे आपको किसी दूसरे का देखना हो तो उसके यूजर नेम पासवर्ड पता होने चाहिए, आप लॉगिन कर लो, या अपनी एक्टिविटी देखनी हो तो आप कर सकते हो। एंड आई कैन गारंटी यू कि जब ये डेटा अगर आपने देखा है तब ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो आफ्टर दिस सेमिनार और द वेबिनार आप फोन को बहुत सेफ्टी से यूज करोगे, और मे बी लिमिट कर दो। या सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये डिलीट कैसे करना है। सो देखो, इसमें आपको जाना है, मेरा जीमेल अकाउंट लॉगिन है, देन आई हैव ओपन द वेबसाइट myactivity.google.com। आपको सिर्फ ये यूआरएल याद रखना है, नहीं तो गूगल पे सीधा सर्च कर लो कि माई एक्टिविटी, तो भी आप कर सकते हो। देन यू शुड क्लिक ऑन द एक्टिविटी कंट्रोल विच इज देयर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल, एक्टिविटी कंट्रोल्स, and from where you can see it very clearly, like the web and application activity and history, then location history, और उसके बाद YouTube सर्च हिस्ट्री, कि आपने सर्च क्या किया और देखा क्या है। हम लोग एक एक लेके चलते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहला है वेब एंड एप्लीकेशन हिस्ट्री। बहुत सारे यूज केसेस है, मैं आपको सिर्फ एक यूज केस बताता हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन। मान लो रजनी मैम ने बोला कि उम्मीद ने मुझे रात को 2 बजे मैसेज किया व्हाट्सएप पे और कुछ ऐसा कंटेंट भेजा जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, एंड उसका स्क्रीनशॉट लाके डायरेक्टर सर को दे दिया। उस केस में एक तो होता है कि पुलिस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन होगी प्रॉपर। सेकंड थिंग, what director sir can do, they can, like, he can ask me to come at office and open my activity account on his laptop, and from the laptop he can check कि मैंने रात को 2 बजे क्या वाकई व्हाट्सएप ऑन किया भी था। बिकॉज अगर व्हाट्सएप ऑन ही नहीं हुआ तो मैसेज आने का तो कोई है ही नहीं, हो सकता है फेक स्क्रीनशॉट बनाया हो इन्होंने। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे अभी हमने सर्च किया था मास्क आधार गूगल पे कुछ देर पहले, तो वो रिकॉर्ड पूरा आ गया कि मैंने 12:45 पे गूगल में सर्च किया था मास्क आधार कार्ड। उसके बाद मैंने ये वेबसाइट विजिट करी थी, उसके बाद उससे पहले मैंने जूम लिंक का हुआ था, ट्रू कॉलर चेक किया, मैंने टेलीग्राम चेक किया है, ऐप खोला है। तो इसी तरह से अगर व्हाट्सएप खोला होता तो उसमें प्रॉपर टाइम आता कि मैंने किस डेट एंड टाइम को किस डिवाइस से व्हाट्सएप अकाउंट ओपन किया है। तब एक इंसिडेंट या एक ट्रेल बनता है कि हाँ मैंने ऑन किया है, इसका मतलब मैसेज भेजा भी होगा, एंड लेटर ऑन यू कैन प्रोसीड पहचान फॉर लिया द पहचान लिया। लीगल इन्वेस्टिगेशन कहाँ एंड द है, अदर कौन से थिंग्स। बैंक में है आजकल? तो हाँ। इस तरह के आपने जो भी सर्च किया है, अच्छा। एंड ये सर्च सिर्फ महीने 2 महीने या दिल्ली फिर में 1 साल का नहीं है। लाइक ये जो, नहीं, आईसीआर में है। सर कैन यू प्लीज पुट योर माइक ऑन ऑफ, या थैंक यू। सो जब से आपने ये जीमेल अकाउंट यूज करना शुरू किया तब से लेके आज तक की सारी हिस्ट्री इसमें है कि आपने क्या देखा, क्या सर्च किया, एंड सब कुछ। बहुत कुछ है, आप खुद प्रैक्टिस करना, अदरवाइज हम उसको बाद में नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करेंगे। अब आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ जो सबसे क्रिटिकल है। जो लोग घर पे ही बोल के आते हैं कि मैं ऑफिस हूँ और कहीं और होते हैं, वो उनके डेटा देखते हैं आप, कि बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैं तो पास में ही हूँ। ये अगर किसी के हाथ लग गया ना, जो रेड डॉट्स हैं
वो मैक्सिमम लोकेशन है जहाँ मैं घुमा हूँ या फिर मेरा ये फोन गया है. सो यू कैन सी क्लियरली कि जयपुर या फिर राजस्थान के आसपास मेरा घर है. सो यहाँ पर ज्यादा डॉटेड है देन मैं दिल्ली रहता हूँ. सो सेकंड डॉटेड वहां पर है ज्यादा. उसके बाद जहाँ जहाँ आप घूमे हो या फिर जिस मोमेंट्स पे आप गए हो वो सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी नीचे का सारा. सो ये डिटेल्स आप देख लेना. मैं आपसे ये पूछता हूँ कि लाइक आज जो डेट है 30th of November 2020 आप कहाँ थे? किसी को याद है? मे बी मैं ये पूछ लूँ कि 2021 में भी कहाँ थे आप, या फिर इस महीने की 1st of November को भी आप कहाँ थे? किसी को याद नहीं है बट गूगल को सब याद है. चलो देखते हैं. मैंने बोला 2020, मंथ बोला नवंबर, देन आई सेड 30th. लेट मी क्लिक ऑन इट. इस टाइम मेरा फोन ऑन नहीं था. मेरा बाद में कब ऑन हुआ है, क्योंकि कोविड डेटा कोविड से पहले का डेटा मिल जाएगा इसमें शायद मे बी. यस, ये डेटा आप देखो. कोविड में फ्रॉम नवंबर नवंबर 30th. यस, ये देखो, आप कोई भी डेटा देख लो, नवंबर 30th को नहीं था डेटा, बट फ्रॉम दिसंबर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ गया, कितनी देर रुका, क्या ट्रेवल मीडियम था. ऐसी डिटेल तो पुलिस को सीडीआर में भी नहीं मिलेंगी. और जो आप झूठ बोलते हो कि नहीं मैं तो वहाँ 10 मिनट ही रुका था, आप देखो. I started my journey on the date of 7th December 2018 at 10:36 from Sultanpur, Delhi, which is in the South Delhi. Then मैं after traveling 20 kilometers, I took 3 hours 46 minutes in the travel. Then I went to the GD Goenka Public School at Gurgaon to deliver a session. जहाँ पर मैंने कितनी देर के लिए अराउंड 57 कुछ मिनट का था ये सेशन. मैंने वहाँ पर कुछ गया, मीटिंग हुई. Then I took a car for 22.2 kilometers, which actually took 57 minutes to take me to the destination. Then I came back to my house 3:29. वहाँ पर मैं 5:10 तक रुका इवनिंग में, सेम घर. देन सबवे या फिर कुछ ऐसा अंडरपास या मेट्रो मैंने कुछ लिया फॉर 1 hour 9 minutes. देन आई वेंट टू द CCD. कौन सा? सफदरगंज एनक्लेव में. कितने टाइम के लिए? फ्रॉम 6:19 to 7:46. तो मैंने आज से 2 साल पहले या ऑब्वियसली 4 या 5 साल पहले किसके साथ कॉफी पी है वो भी देख सकते हैं. वैसे मैं सिंगल हूँ तो रिश्ते में रिस्क बहुत है, मैं तो खुद डिलीट करूंगा ये. देन ब्लॉक क्यू पे मैं कुछ देर के लिए गया, सबवे रुका, विच इज माई वो थोड़ा रास्ते का है. बाटा शोरूम गया मैं, कहाँ पर? CP में. एंड वहां पर मैं रुका 8:18 to 9:13. आप ट्रेवल मैप भी देख सकते हो पूरा राइट साइड में हिस्ट्री के साथ. देन वापस मैं सफदरगंज के आसपास आया फ्रॉम 9:23 to 30. अगेन ट्रेवल टाइम इज 25 minutes फॉर 13 किलोमीटर. एंड लास्ट मैं 9:54 पर अपने घर आ गया. तो ये 12 घंटे का है ना. सुबह 10:30 से रात को 9 9:30 बजे तक का पूरा ट्रेल है. और ये किसी भी डेट का आइडेंटिफाई कर सकते हो आप. 2018 का ही नहीं, आप जैसे 2021 का आपको देखना हो, कोई भी डेट का. 2021 में फोन ऑफ था, आपको मिलेगा 20 के एंड में, स्टार्टिंग में मिल जाएगा. ये रहा, सॉरी. तो इसमें आप कोई भी एक डेट देख सकते हो, 16 जनवरी 2020. तो इसमें मैं कहाँ से कहाँ तक गया, कहाँ ट्रेवल किया, बैंक में या फिर कितनी देर के लिए मैं रुका, ये सब सारी डिटेल्स. ये कॉलेज है जहाँ पर मैं एग्जाम देने के लिए जाता था फॉर LLB, बिकॉज ये CCSU मेरिट का कॉलेज है. सो देर आर मल्टीपल डिटेल्स विच आर देयर विद द गूगल दैट यू कैन नॉट डिलीट. अगर आपको पता नहीं है तो अदरवाइज यू कैन डिलीट. ऑब्वियसली आप पूछोगे कि अब हमारे काले चिट्ठे पुराने डेटा कैसे डिलीट करने. देन देयर इज ऑप्शन एट द सेम पोर्टल. सो यू कैन गो टू द okay, let me just reopen it. Yes, you can go to the delete activity by. Then you can delete activity for last 1 hour. अगर आपने कुछ गलत 1 घंटे में किया है, एक दिन में किया है, या किसी कस्टमर रेंज का कि मैं 10 से 15 नवंबर को कहीं दूसरी जगह था बिकॉज ऑफ ऑफिशियल ट्रिप नेम, तो आप वहां से भी वो डेटा डिलीट कर सकते हो. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन ऑन द डिटेल्स विच इज देयर. बट अगर आपको पता नहीं है तब तक वो डिटेल गूगल रिटेन करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा, और ये इन्फॉर्मेशन कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है. सो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो गूगल के पास है, तो डिवाइस यूज करते हो, आपको लगता है कि मैंने इनकॉग्निटो खोल लिया अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है. गूगल को अभी भी पता है कि आप क्या कर रहे हो, कितने टाइम के लिए कौन सी एक्टिविटी या कौन सी चीजें कर रहे हो, वो सब गूगल को ऑलरेडी पता है. देन द लास्ट पॉइंट इज द यूट्यूब, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ.
यूट्यूब हिस्ट्री। आपने अगर एक केस पढ़ा होगा, शैलजा मर्डर केस, दिल्ली में था, एक मेजर ने दूसरे मेजर की वाइफ का मर्डर किया था। वी हैव क्रैक्ड दैट केस विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल डैशबोर्ड ओनली, जिसमें उसने रात को मर्डर से पहले यूट्यूब पर देखा था, लाइक हाउ टू ब्रेक द नेक बोन्स, जिसमें उसने लड़की का मर्डर फिर वैसे किया था। सो मैंने देखो क्या क्या सर्च किया है, क्या डिटेल्स हैं दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कि मैं क्या डेटा डिलीट हुआ या फिर सॉरी क्या डेटा हुआ। इसका एक बेनिफिट है, अगर किसी लड़की को लगता है कि मेरा वीडियो किसी ने अपलोड किया ऑन यूट्यूब और अदर थिंग, सस्पेक्ट का अगर वो नाम लेती है तो आप खुद भी देख सकते हो, सस्पेक्ट को पकड़ा और उसके उसका जीमेल अकाउंट लॉगिन किया। क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन नेचर, व्हाट आई विल डू, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको एक बार विजिट करके जरूर देखता हूँ, और विजिट करते ही यहाँ पर उसकी एक्टिविटी लॉग्स बन जाएंगे। सो ये आप चेक कर सकते हो। एक छोटा सा घरेलू नुस्खा भी है इसका, फाइंड माई डिवाइस। अगर आपका फोन कहीं घर में रखा हुआ है, साइलेंट है, या फिर अभी अभी किसी ने चोरी कर लिया है, सेम डिटेल्स आपको आई क्लाउड पे भी अवेलेबल है फॉर आईफोन और द आईफोन यूजर्स। अभी देखो, फाइंड माई डिवाइस में मेरा फोन अगर चोरी हो गया, कहीं पे मैं भूल गया रख के, या फिर उसमें बहुत क्रिटिकल डेटा है, सो व्हाट यू कैन डू। अभी देखो मेरा फोन, लेट मी शो यू माय अनदर फोन। ये अभी देखो, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो साइलेंट मोड पे है। व्हाट आई विल डू, आई विल प्ले नॉइस फ्रॉम हियर, साउंड। सो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा या और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो देखो अभी इस पे साउंड आएगा, कैन नॉट रीच योर डिवाइस। अच्छा, मैं डेटा ऑफ कर रखा है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी। यस इट इज ऑन। ये देखो अभी वो साउंड जो मैंने उस टाइम क्लिक किया था, वो डेटा मेरे पास अभी आ रहा है। उसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स हैं, रिंग आ रहा है प्रॉपर, देन सिक्योर योर डिवाइस। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रेनिंग ऐसी मिल रही है। मैंने एक बार दिल्ली पुलिस की एक ट्रेनिंग थी, उसमें मैंने सिखाया कि हाउ टू सिक्योर योर डिवाइस इन केस ऑफ लॉस्ट और थेफ्ट। तो आप यहाँ पे एक रिकवरी मैसेज डाल के एक फोन नंबर डाल देते हो स्क्रीन पे, जैसे वो पावर ऑन करेगा तो उसको एक नंबर दिखेगा कि प्लीज रिटर्न माय फोन एंड कॉल ऑन दिस नंबर। तो आप ऐसा करके एक मैसेज स्क्रीन पे दिखा सकते हो रिमोटली। लेकिन उसके बाद एक पिन मांगेगा, अगर वो पिन आप कभी भूल गए, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर पूरा डिवाइस फॉर्मेट होगा, डेटा रिकवर नहीं होगा। तो प्लेन उड़ाने से पहले उतारना जरूर सीख लेना, सेफ्टी रखना। इरेज योर डिवाइस इफ यू थिंक दैट योर डिवाइस हैड सम पर्सनल फोटोग्राफ, वीडियोज और डॉक्यूमेंट ऑफ योर ऑफिस। अगर किसी का हाथ लग गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उस केस में डिवाइस तो रिकवर नहीं हो सकती, बट फ्रॉम बाय यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन इरेज द एंटायर मोबाइल फोन रिमोटली, जिसमें फिजिकल एक्सेस की जरूरत ही नहीं, पूरा फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स भी हैं गूगल में दैट यू कैन यूज, और मे बी यू कैन यूज फॉर द सेफ्टी मेजर्स और द प्रिवेंटिव्स। आई विल टेक 1 or 2 minutes to quickly take you through the safety measures. First, always use the parental controls if you are handing over your device to your children's or any other in your family member, कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशन या फिर कौन सी डिटेल्स यूज कर सकते हैं। There are multiple authenticated website or the application who actually giving you a facility to control the application, like who can use this application for how many times or how much duration it can use, what is the time beyond that it will not open or accessible by any of the user. So ये चीजें आप यूज कर सकते हो। then you can use two factor authentication and it should be there, it is mandatory for safety measures, like कोई भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल अकाउंट या कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे ऑफिस का आपका एप्लीकेशन है, if there is an option to implement the two factor authentication then you should implement it, configure it, because अगर किसी को सोल्डर सर्फिंग या गैस करने से किसी को यूजर नेम पासवर्ड मिल भी गया, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के केस में वो यूजर नेम पासवर्ड होते हुए भी आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा। इट इज एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी कि पासवर्ड लीक होने के केस में भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन शुड बी देयर ऑन ऑल योर अकाउंट्स। Never install any of the unauthorized or the third party application, especially in case of Android, क्योंकि iOS में या फिर Apple में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले iCloud पे पुश करना पड़ेगा, then from there you can install it in the device and it will take time and it require more technical skill to integrate or implement that spyware application in your phone. So Android phone में थोड़ा सेफ्टी रखनी है। कीप योर डिवाइस फॉर्मवेयर एंड एप्लीकेशन अपडेटेड, लाइक कई बार होता है कि iOS का या एंड्रॉइड का वर्जन पुराना है, तो आप रेगुलरली उसको अपडेट करें, एप्लीकेशंस को ऑटो अपडेट पे या रेगुलरली अपडेट करें।
always keep checking the permission which actually that application require. Like अगर आप कोई photo decor application download कर रहे हो तो why it require the contact access or access to the your folders or files, why? So जिसकी जितनी जरूरत है उतनी access दें, उसके beyond अगर कुछ permission मांगता है तो you can personally discontinue that particular permission from your device कि उसको access ही ना हो. Similarly, there are other features which are there with the Google, like you can use DPS trackers for your children to share the location if they are going outside of the house at night hours or the late night hours. Uninstall or unused application जो आपके फोन में या लैपटॉप में है वो आप immediately remove कर दें, because उनको ज्यादा देर तक रखोगे तो आउटडेट हो जाती है और आउटडेटेड वर्जन में कुछ ना कुछ एक्सप्लॉइट्स आने के चांसेस रहते हैं. सो जो एप्लीकेशन यूज में नहीं हो रही उसको आप रिमूव कर सकते हैं immediately. Then do not use your password like the same password for all your online accounts. जहां जहां जरूरत हो सिर्फ वहीं यूज करें, अदरवाइज यू कैन रिमूव दोज लाइक यू कैन जहां जरूरत है वहां सेम पासवर्ड यूज करें. लाइक आपका कोई अगर सिंगल साइन ऑन है, अदरवाइज आप हर एक अकाउंट पर आप डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड रखें, क्योंकि अगर एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया ऐसे में सेम पासवर्ड के साथ दूसरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज ना हो. पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी है, एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज को जितना कंट्रोल हो यू शुड कंट्रोल इट. These are the legal sections under the IT Act which actually can help you, like 66C for the using password of the another account. अगर आप किसी, ये सेफ्टी नहीं है, ये आपके लिए एक अवेयरनेस है कि अगर आप किसी दूसरे आपके कलीग या फिर सबऑर्डिनेट का या सीनियर के पासवर्ड यूज करके कुछ गलत माइंडसेट से कुछ एक्टिविटी करते हो तो ऐसे में आप पर सेक्शन 66C के अंडर आप पर पनिशमेंट और फाइन के प्रोविजन होते हैं. तो कभी भी गलती से ऐसे लालच में आके ऐसी चीजें ना करें. जिनके अकाउंट है, जो ऑनर है, उसी से वो सब काम करने दें, अदरवाइज प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है. सिमिलरली फॉर चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, अगर आप किसी को हैक करते हो या फिर कोई आपकी आईटी एसेट्स को हैक करता है, देन अंडर सेक्शन 66D उस पर पनिशमेंट या फाइन के प्रोविजन होते हैं. These are the basic approach or the points which you can include in your office culture to make sure like all your employees and the staff are aware about the cyber security. Like ऑफिस इंडक्शन जब होता है, कभी कोई अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग होता है, उनको ये सब बताना कि कैसे कैसे अटैक्स या कुछ चीजें हो सकती है, या कोई नया ट्रांसफर होके आता है, देन यू कैन आल्सो मेक हिम अवेयर कि क्या कुछ सिक्योरिटी मेजर्स आप फॉलो करते हो. अवेयरनेस होनी चाहिए, फ्लोर पे रेगुलर सेमिनार्स होने चाहिए. कैफेटेरिया में आप ऐसे बैनर और होर्डिंग्स लगा सकते हो या फिर जनरल सेशंस कर सकते हो, सडन सरप्राइजिंग सेशन एट कैफेटेरिया एज वेल, क्योंकि वहां पर लोग फ्री माइंडसेट से होते हैं, ज्यादा सुनते हैं. देन यूज सोशल मीडिया अकाउंट्स, टीवी और प्रिंट मीडिया जो कि आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्ले आइटम्स होते हैं. सिक्योरिटी पॉलिसी यू कैन आल्सो बिल्ड, बिकॉज जो एग्रीकल्चर में आप बिल्ड कर रहे हो उससे तो हम एज ए फार्मर और हम बेनिफिशियल हैं उस चीज के लिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं. सिमिलरली यू कैन अडॉप्ट फ्यू ऑफ दिस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज टू मेक श्योर योर ऑल डेटा, कंप्यूटर, सर्वर्स और नेटवर्क डिवाइसेज आर सिक्योर. कुछ ऐसा इंसिडेंट हो, देन यू कैन रीच आउट टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. वो सबसे बेस्ट और प्राइम ऑप्शन मानते हैं हम लोग, वो आज भी सबसे बेस्ट ही है, बिकॉज हैंड रिटन कंप्लेन पे जल्दी एक्शन होता है. नहीं जा सकते, देन अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे ऑनलाइन कंप्लेन दे सकते हो. अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो फिजिकल कंप्लेन के साथ साथ आपको 1930 पर आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है. इट इज ए नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर अंडर दी MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो वहां आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है. देन अगर कोई कंप्लेन नहीं होती है, किसी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन के लिए मना करता है, तो आप 100 पे कॉल करके भी कंप्लेन करवा सकते हो. Similarly, you can reach out to the cybercrime.gov.in portal to launch the complaint online. Plus for women और girls की जो चाहते हैं कि ऐसी कंप्लेन मुझे देनी है बट वो अनोनिमस हो, मैं अपना नाम, कंप्लेनेंट का नाम या डिटेल डिस्क्लोज नहीं करनी, देन देयर इज ऑप्शन फॉर अनोनिमस कंप्लेन एज वेल. तो आप वो कंप्लेन भी कर सकते हो. अभी रिसेंटली ये कुछ ट्रेंड है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, डिसकंटिन्यू है, या फिर इस तरह की पेमेंट आपका ड्यू है, तो कभी भी इन चीजों पे भरोसा नहीं करना, ये सब फेक और स्कैम होते हैं. And the last line that I want to say is, the more you use internet, the more you will become vulnerable. But it doesn't mean like you should stop using your digital gadgets or devices. No, you should use it, but with the more precautionary measures or the safety controls. So thank you so much for the ICR team who actually invited me and given me this opportunity to speak on this particular topic with all the senior officers or the government officials. I really enjoyed the session, and I'm so happy to deliver this session, because ICR
खेती एग्रीकल्चर हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना हम कुछ नहीं है. So thank you so much, Premchand ji, for introducing me and Rajni ma'am. Thank you so much, and for participants as well, जिन्होंने like almost 1.5 year बहुत silently बैठ के सुना है. Otherwise दोपहर के टाइम पे ऐसा सुनना थोड़ा सा नींद आने जैसा है. But आप लोगों ने बहुत cooperate किया. उसके लिए thank you so much to all the participants and the ICR team. Now it's over to you, Rajni. Thank you, Dr. Umeed, for giving this wonderful lecture. In fact, all the participants, they are hooked to their system right from the beginning. Like I can see the same number of participants on my screen right from the beginning. You can unshare the screen also so that all are visible, and I will also request everyone to switch on the videos so that we can take picture of it. I will request Dilip to take a screenshot of this. So like your talk, it is really wonderful talk. In fact, you have told us not only to secure our personal mobiles and computers and how like to prevent data theft from our system, how to secure our systems, and in case of any unforeseen this thing, where to report and how to report. So I think that will also be useful. In fact, as a part of celebration of this cyber awareness program in the institute, we are required to have one quiz also. So your talk was so much useful that we are going to circulate it to all this recording, and then we'll conduct quiz out of this syllabus so that everyone becomes aware of it. Because even though we have planned that and we have told this plan to ICR, but we were not knowing what should be the scope of that quiz. So now your talk has given one scope. So we will have that. So this will also be useful in that regard. And like in light of this, I will also request my colleagues not to use this cracked softwares, which some of you might be having, as he has told clearly, no free lunch kind of thing is there. So if at all we are having such kind of thing, we are inviting some kind of cyber attack. And this is just for your information that we have secured our institute computers and other things with antivirus as well as network firewall. So that firewall is there at our gateway. Like that prevents, untoward incidents and any like server hacking or individual system hacking is, prevented using that. So at the last, in case Director Sir would like to add something before we finally end. Thank you, Mr. Mill, for such a wonderful and useful lecture. So Yeah. it will not only help us in smoothing our personal life, but professional life also. Thank you so much. And we hope, Rajni, we should invite Mr. Mill once more for Yes. any such lecture or something. Yes. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Thank you. And I would also like to thank Dr. Premchand, who has given me his contact details for further exploration with him, whether he's available or not. So this was really wonderful, Dr. Premchand, that you have, initiated and given us his reference so that we could interact with him and invite him for this. I am also requesting Mr. Umeed, you can give us some other speakers details also who are working in this area and who can really give useful insights to my colleagues and other persons who are connected to this online webinar regarding how to secure ourselves on this Sure. cybercrime. So, Sure, I'll do that. yeah, thank you everyone for joining me in this webinar and getting the benefits of this lecture. So thank you once again. Thank you one and all. Thank you. So let us, appreciate him with a big hand. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. So we are just going to close this session now.
So thank you.